बनेगा, सलामी दे। हाथ नीचे, एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। भाव राष्ट्र के लिए तिरंगे के आगे झुककर राष्ट्र वंदन करते हैं। सभी को शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं शिवम यादव को बुलाना चाहूंगा जो अपना स्पीच रखेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को सुप्रभात। आज हम गणतंत्र दिवस के पर्व पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। वर्ष 1950 को इस ही दिन देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस का यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना भेदभाव के सिद्धांतों के आधार पर हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। यह दिन राष्ट्रीय गर्व का दिन है। यह हमारे संविधान की विभिन्न मूल्यों की याद दिलाता है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन भी इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ के भव्य गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन
हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ हम उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके साथ ही सेना की तीनों टुकड़ियां अपनी सैन्य ताकतें Myself Sanjana, I would like to share my opinion with you all about this auspicious day. A bright morning to dear principal sir, dear teachers and my dear friends gathered here. 7 decades ago on 26 January 1950, our constitution came into effect on this day, since we celebrate Republic Day. Dr. Baba Sahib Ambedkar was the chief founder of this constitution. Our constitution gave us rights as citizens in India. I feel very proud to be a citizen in India. Which ensures fundamental rights like rights to equality, freedom, education, religion, etc. to all citizens. A sweet thank you to all of you. Teachers and all others who have gathered here to celebrate the 72nd Republic Day of India. I wish you all a very warm welcome. Today's event is a very wonderful and praising event for each and every one of us. We observe Republic Day because the Constitution of India came in force on this day in 1950. India is a very democratic and just nation where each citizen has the right to choose their leader who deserves to lead the nation. Although there have been many improvements till now, there also have been many deteriorations such as unemployment, lack of literacy, pollution and poverty. But we can all pledge today to solve these types of issues as the people of this nation
to make our country number one in the world. Republic Day reminds us of our struggle, how the Indian National Congress, with the help of youths and all of the nation, achieved its demand of Purna Swaraj. The struggle for freedom was based on high principles such as non-violence and freedom for all. In our country, we can all see that we have a perfect coordination, cooperation, and non-discrimination. India has the largest constitution in the world to cater to all the people of the nation in equal. This day also reminds us of the sacred values enshrined in the Constitution of India by Dr. Bhimrao Ambedkar and his colleagues. With these few words, I would like to end my speech, and I would like to express my thanks to all of you who have given me such an opportunity. Thank you. थैंक यू। लेकिन जो वास्तविक आज़ादी है वो मिली हमें 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। हमें स्वतंत्र रूप से रहने की, सभा करने की, समान रूप से विचार रखने की, ये सारी की सारी बातें हैं, वो हमें 26 जनवरी 1950 के बाद में मिली। और ये एक बहुत बड़ा पर्व है, और जिस पर्व के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ हमारे वीर शहीदों ने दी है, उन्हीं में से एक भगत सिंह का नाम आता है। और भगत सिंह के रूप में हमारे एक नन्हे बच्चे ने आज थोड़ा वेश धरा है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो सामने आए और अपनी प्रस्तुति दे। भगत सिंह जी, सुना सुना लगता है। मेरी दुल्हन आइए के साथ स्वागत के बच्चे हौसला सहित देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तेरे झंडे को सलाम है। 3 रंग से सजा तिरंगा, सफेद हरा और केसरिया। 3 रंग से सजा तिरंगा, सफेद हरा और केसरिया। इसमें सच्चाई हरा खुशहाली केसरिया बलिदान है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझको तेरे झंडे को सलाम है। अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, भारत की विशेषता है, भारत की विशेषता है। सुबह यहाँ की सदा नहीं है, यहाँ नहीं और शाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझको तेरे झंडे को सलाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझको तेरे झंडे को सलाम है। झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है। जय हिंद। थैंक यू। मॉर्निंग, respected principal sir, respected teachers, and my dear friends gathered here. Myself, Revati Bagal, would like to deliver a small speech on 72nd Republic Day. Republic Day, our national festival. Today, whole country is celebrating. 26 January 1950. The Indian Constitution came into force on that day. I salute to all freedom fighters. Because of them, we are living in an independent country. Thank you. Have a nice day. बढ़िया। Republic Day of the world's largest and most vibrant embrace. In this land of art, enriched by diversity with many festivals, our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate the national festivals of Republic Day with enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in Constitution. This day has come to mean a lot to all Indians living within the country and abroad. 72 years ago, on this very day,
we, the people of India, adopted, enacted, and gave ourselves a unique constitution for all of us. Then, this is the day to also pause and ponder over the core values that the Constitution propounds. These values, justice, liberty, equality, and fraternity, outlined in the preamble of our Constitution, are sacred to all of us. Its abiding adherence is meant not only for those who are mandated to govern, but for the people at large. A galaxy of great leaders and thinkers like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, and Subhash Chandra Bose inspired our freedom struggle. They had diverse dreams of magnificent future of the motherland, but common to their aspirations were these values: justice, liberty, equality, and fraternity. Despite the values, we Indians have always known deep in our hearts that care and concern for सजीव कीर्ति पूछती, तथी उसी उद्गार को समस्त सृष्टि पूछती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। In English, these sentiments can be broadly conveyed in the following words. It is benevolent, whose glory lives on in songs eternal. It is generous, whom the world reveres forever, whose spirit of oneness fills the boundless universe. They truly are human who die for the fellow beings. I am sure this love for humanity and spirit of the sacrifice will take us to great heights. Once again, I congratulate all on the 72nd Republic Day of India. Jai Hind. बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आज लग रहा है बेटियां कमाल कर रही हैं। एक से एक। My name is Dhaya Davison, respected principal, ma'am, teacher, and my dear friend. All of us are here to celebrate the 72nd Republic Day of our country today. This event is very wonderful and precious to each one of us. On this eventful day, we should pray to God to enhance our country and welcome each and every one of us. On 26 January, we observe the Republic Day because the Indian Constitution came into the force on this day as of 26 January 1950. We lead the nation. While there have been many improvements till now, few declines have also come with it, such as unemployment, poverty, pollution, and so on. But all we can do is to promise today to solve these type of issues together as people of the nation, to make this country one of the best countries in the world. Thank you. होने दो, मेरे देश को महान होने दो, सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़े जाने दो गीता, अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता, और मंदिर में अजान होने दो, मंदिर में अजान होने दो। अब इसके साथ ही मैं रोहित भगत को बुलाना चाहूंगा। नन्ना मुन्ना बच्चा हंसते हुए मंच पे आ रहा है और ये माझ्या मित्रांनो, आज आपण 72वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी इथे एकत्रित जमलो आहोत। मित्रांनो, आपल्या देशात 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले व 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात आली। म्हणजे त्या दिवसापासून खरी प्रजेची सत्ता आली। म्हणूनच ते दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो आणि हा दिन सुवर्ण दिन असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण 150 वर्ष गुलामगिरीच्या दुखडात अडकून पडलेल्या भारतात लोकशाही लागू लागली। आज अजरामर दिन लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून राज्य म्हणजे लोकशाही रुजू लागली। यासाठी आपल्या अनेक क्रांतिकारांनी, समाजसुधारकांनी, देशभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती देऊन आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे। हे आपल्याला कदापि विसरता येणार नाही आणि म्हणूनच यांच्या स्मृती, यांचे कार्य आणि यांचे विचार आजही अविरत राहण्यासाठी आपण हा दिवस लहान थोरापासून अगदी आनंदाने व उत्साहाने दरवर्षी साजरा करतो। शेवटी एवढंच सांगण्यात आपण प्रत्येकाने
एकोप्याने राहून या देशाची प्रगती साधली पाहिजे. आपल्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्याचे पालन केले पाहिजे. जातीभेद, विषमता, भ्रष्टाचार, अंधश्रद्धा याला हार न देता एक होऊन या भारताच्या देशभक्तीसाठी लढलं पाहिजे. तेव्हाच हा माझा देश दुजला चुकला होईल. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. बढ़िया प्रस्तुति तेजस. अब 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगा. खुशियों पर मौज की रवानी होगी, खुशियों पर मौज की रवानी होगी. जिंदगी में कोई न कोई कहानी होगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी होगी. और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे, और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी. अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी. नेहरू जी है, अम्बेडकर जी है, आते रहते हैं, मंच को शोभित करते रहते हैं. नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आप जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो जारी रखेंगे. अब इनके बाद में मैं सोलंकी जी को आमंत्रित करूंगा. मयूर बच्चा अपनी प्रस्तुति देगा. जो उनकी मोनो एक्टिंग है वो सामने रखेंगे आपके. वेश है वो धरा, और अच्छी प्रस्तुति रही आपकी. इसके बाद में मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा. आजादी से जीना आसान होगा, आजादी से जीना आसान होगा. यहाँ हर जाति धर्म समान होगा. आजादी से जीना आसान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा. सपना था कानून लिखने वालों का, सपना था कानून लिखने वालों का कि हर भारतवासी इंसान होगा, हर भारतवासी इंसान होगा. अब इसके साथ ही मैं सोलंकी जी को आमंत्रित करूंगा. वो आपके सामने अपनी कविता रखेंगे. सोलंकी जी आए. पीजीटी हिंदी है और आजकल दार्शनिक हो रहे हैं थोड़े. मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि, आज के आचार्य विजय सर, मेरे साथी शिक्षकगण, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. वैसे इतना दार्शनिक तो नहीं हूँ, बस हिंदी विषय होने के कारण बचपन से ही हिंदी के प्रति बहुत ही प्रेम है. तो हिंदी में अपने विचार रखने का एक इच्छा होता है, और ऐसे ही अवसरों पर अपना मत रख पाता हूँ. तो एक छोटी सी गणतंत्र के ऊपर हम सभी ने गणतंत्र की महिमा यहाँ पर अनेक विविध रूप से हमने देखी. 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान में अनेक सारी बातें बताई गई हैं. उन अनेक बातों को ही काव्यात्मक ढंग से मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूंगा. गणतंत्र के बारे में हमने सभी ने सुना स्पीच के माध्यम से. उसी बात को एक काव्यात्मक ढंग से, कविता के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. गणतंत्र क्या है? महाजनवरी 26 को हम सब गणतंत्र मनाते. जनवरी 26 को हम सब गणतंत्र मनाते, और तिरंगे को फहराकर गीत खुशी के गाते. संविधान आजादी वाला बच्चों इस दिन आया.
संविधान आजादी वाला। बच्चों, इस दिन आया, इसने दुनिया में भारत को नव गणतंत्र बनाया। कर्तव्यों को पहचाने, अधिकारों के साथ जुड़े अपने कर्तव्यों को पहचाने। जय हिंद, जय भारत। Respected principals and teacher, प्रजासत्ताक दिन को डेडिकेट करते हुए मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी है कि बहुत पन्नों को उलझा के मैं एक बात पे आया हूँ, बहुत पन्नों को उलझा के मैं एक बात पे आया हूँ कि इतनी सरल कहाँ थी आजादी। बहुत पन्नों को उलझा के मैं एक बात पे आया हूँ कि इतनी सरल कहाँ थी आजादी, घर घर में कहाँ थी खुशहाली। बहुत 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 खून बहा था स्वतंत्रता के इस मौसम में, बहुत 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 खून बहा था स्वतंत्रता के इस मौसम में। शहीद 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 हुए थे सपूत हमारे आज को उजाला देने के लिए। और आज भी जवान खड़े हुए हैं हमारे घर को रक्षित करने के लिए, और आज भी जवान खड़े हुए हैं हमारे घर को रक्षित करने के लिए। तो क्या एक दिन भी नहीं मना सकते हम उनको उत्साहित करने के लिए? आइए जुनून बढ़ाते हैं, आइए जुनून बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। जो बीत गया उसमें से सबक लेकर, जो बीत गया उसमें से सबक लेकर, कुछ नई सीख लेकर, संसाधन का संरक्षण करते हुए, बिना करप्शन के काम करते हुए, रोग मुक्त स्वास्थ्य युक्त प्रजासत्ताक भारत का प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक दूसरे को सहयोग किया। चंद लाइनें मैं इन पे कहना चाहूंगा। तुमको मिल सकता है, तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुझसे बेहतर। लेकिन तुम और हम घर मिल जाएं, लेकिन तुम और हम घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता हमसे बेहतर, हमसे बेहतर। नवोदय विद्यालय धुले के द्वारा बड़ा ही सामूहिक प्रयास किया गया, और अब मैं सीनियर रेस्पेक्टेड सर विलियम सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार है वो रखें। सर। Morning to all of you. So on this occasion of Republic Day, it is my privilege to address a stage where people from all the states are present here. And I also enjoy it. Means I have enjoyed it that I have lived in another state rather than my home state, and where I experienced the essence of the Constitution. As Aditi had said, she brought out the core values of the Constitution: justice, equality, fraternity, and one more, Aditi? Liberty, yes. Justice, equality, liberty, and fraternity. The essence of the Constitution is fraternity. Fraternity means brotherhood. We are all living as brothers. Now I am from Tamil Nadu, I have lived in Maharashtra, I have lived in Gujarat and other states. Everywhere I found that there is a brotherhood. And it's so nice to be welcomed and to be not seen as foreign. Wherever I have gone, I have been accepted. So that is the essence of the Constitution. And we have enjoyed the fruits of this Constitution
for the last so many years. When we were becoming independent, the Britishers felt that Very good morning, respected and my dear colleagues and my children. Actually, I have not prepared anything such that, but as जो माहौल क्रिएट हो गया है तो सोचा दो लाइन में कुछ शब्द मैं भी अपने शेयर कर देती हूँ. As Pratham enacted as Bhagat Singh, when the name of Bhagat Singh come into account, then we can't leave without saying anything, because Bhagat Singh was a great personality. Actually, he was not a person, he is a thought. At that time when independence was not there, we were not independent. That time the challenges were different and we were not having so much resources. Still our freedom fighters faced that thing. That's a great thing to learn about that. Without any resources, they have done so much for us. Now, we are so privileged that we have so many resources and we have so many technologies there, so many things are there for us. And that made our life easy. So we can do much better than that. We have more opportunities to do the things. At that time, the challenges were different. The Britishers were there, we were not independent. The things were different at that time. But now also, the challenges have not stopped. Challenges are still there. We have to face those challenges. Now the challenges are within our country. As sir said, but brotherhood is the thing which has made us, which has given us strength. Yes, of course, by the cooperation of each other. As I came here, I joined here, I was having nothing with me, but so many people over here helped me. Jitendra sir especially helped me, Bhavna ma'am, everyone. Means either I have taken the name of only 2 people, but everyone in one or the other way is helping me. So this is called cooperation. Means if I don't have anything, still I can manage the things. So in this way we can do everything. Means this is not the thinking we don't have resources. शुरुआत में जैसे बात करें तो जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आया था तो उन्होंने भी इस पे ध्यान दिया कि यहाँ के जो लोकपाल है इनको क्या है एक ही चीज से तोड़ा जा सकता है. जो मेकाले जहाँ जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है यहाँ पे लागू अंग्रेजी सिस्टम है एक ही चीज से खत्म हो सकता है. ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है खत्म कर, क्योंकि इनका जो ढांचा है वो ऐसा बना हुआ है कि ये कभी भी किसी के आगे क्या है अपने घुटने नहीं टेक सकते, ये टूट नहीं सकते. तो इन्होंने इस पे काम भी किया काफी समय, लेकिन फिर भी क्या है हम अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं और इसको लगातार क्या है मेंटेन कर रहे हैं. और उसी का हिस्सा है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, जो हम मिलजुल कर बनाते हैं. अलग अलग धर्मों के अलग अलग भाषा के लोग बात सभी मिलकर इकट्ठे होते हैं मंच पे. थैंक्स सभी का जो यहाँ कैंपस में पधारे आप लोग, और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रस्तुति दी, और स्टाफ जन का जो मंच पे आए और सभी सहयोग करने वाले. आज अपना जो प्रोग्राम है वो काफी शानदार रहा. अब कार्यक्रम समापन है, वो मैं जादव जी को कहूंगा कि वो मिठाई वितरण करें और कार्यक्रम समाप्त करें. थैंक यू.